ان دنوں میں آپ کے سامنے ان پیغامات کو رکھ رہا ہوں. بی فرونٹ، جوش میں رہو. کس میں رہو؟ جوش میں رہو. بی فرونٹ ان اسپرٹ، بی فرونٹ ان لو. یہ سرمنز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک ایماندار وہ جوش میں نظر آنا چاہیے. بوائل ود ہیٹ اس کا مطلب ہے، اور کسی چیز کے اوپر زور لگانا، ٹھیک ہے، اور جس میں آپ کے مسل سٹریچ ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ اس حالت کے اندر رہنا. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا بی فرونٹ ان لو، اور اس میں کیا اردو میں بات کی گئی تھی؟ بڑی محبت، گہری محبت، جوشیلی محبت ہے. آمین. ڈیپ لو. تو یہ بائبل مقدس اس کے بارے میں جو ہے وہ مسیحوں کو ابھارتی ہے، تاکہ کیا ہو سکے؟ لوگ خداوند کی حضوری میں بڑھیں اور ترقی کریں. سب سے گہری بڑی محبت خداوند یسوع مسیح نے کی ہے کہ اس نے اپنے خون کو ہمارے لیے بہایا ہے. میں محبت کے بارے میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا تھا کہ یسوع مسیح نے کہا ہے اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. یہ انتہائی فرونٹ جو ہے، یہ انتہائی فرونٹ لو ہے. بڑا ڈیپ گہری محبت ہے یہ. لیکن اس سے پہلے ایک سٹیپ ہے، اگر وہ کر لیتے ہیں تو یہ آسان ہو جائے گا. اور وہ اس سے پہلے کیا ہے سٹیپ؟ کہ آپس میں بڑی محبت رکھو. جب آپ آپس میں بڑی محبت رکھتے ہیں، جسے ہم فرونٹ لو کہتے ہیں، گہری محبت کہتے ہیں، تو پھر دشمن اور ستانے والوں کے لیے بھی دعائیں خیر نکلے گی. آمین. اگر آپس کی محبت میں ہم ٹھیک نہیں ہیں تو پھر ہم دشمن سے محبت کرنا صرف یہ زبانی کلامی باتیں ہیں، زبانی باتیں ہیں. یہ صرف یا کلام کو بیان کرنا ہی صرف ہے کہ مسیح نے یہ ایسا کیا ہے. اس محبت ایکسرسائز مانگتی ہے، اور فرونٹ کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کریں. جب کوئی ایتھلیٹ بھاگتا ہے تو وہ اپنے مسلس کو کے اوپر زور ڈالتا ہے، اور یہ مسلس اسی وقت زوراور ہوں گے جب وہ ایکسرسائز کرے گا. تو محبت ایکسرسائز مانگتی ہے. آمین. پریز دی لارڈ. چنانچہ آپ اس محبت کے اندر بڑھیں اور ترقی کریں. آج جو ہے وہ بات کرنے جا رہا ہوں فرونٹ. بی فرونٹ ان سیکنگ. بی فرونٹ ان سیکنگ کیا ہے؟ بی فرونٹ ان جو ہے وہ سیکنگ جو ہے تلاش کرنے میں جوشیلے ہوں، تلاش کرنے میں کیا ہوں؟ جوش میں آؤ. آمین. اور زبور 63 اس کی پہلی آیت میں سے ہم یہ دیکھیں گے. اے خدا تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا. خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے. Early will I seek thee. آمین. میں کیا کروں گا؟ اس کے لیے جو انگلش کے اندر جو ترجمہ آیا ہے، میں صبح سویرے تجھے کیا کروں گا؟ تلاش کروں گا. میں صبح سویرے کیا کروں گا؟ تیرا طالب ہوں گا. آمین. جب پوپ پھٹتی ہے تب میں کیا کروں گا؟ تیرا طالب ہوں گا. آمین. یہ کتنا اچھا ہوگا کہ اگر ہم زبور 63 اس کی چند ورسز خداوند کے حضور میں پیش کریں اور اس کی ستائش میں گائیں. آمین. تڑکے میں تینوں ڈھونڈا،
یا رب میرے خدایا. یہ کیا ہے؟ ڈیزائر آف سول، دا لانگنگ آف سول، یعنی جو ہے روح کی خواہش، اس کی جو ہے ڈیزائر ہے، وہ اس کے لیے تڑپتی ہے. میری جان تیری تہائی تن میرا خشک سالی تن
ढूंढा। Praise the Lord. Hallelujah. तीसरी सदी से ये ज़बूर जो है ये मॉर्निंग सॉन्ग कहलाना शुरू हुआ है, मॉर्निंग सॉन्ग। और जो ज़बूरों की किताब में 63 ज़बूर जब हम गाते हैं तो ये अच्छी ट्रांसलेशन भी है कि ये तड़के मैं तेनू ढूंढा, मैं सुबह सवेरे तेरा तालिब हूँगा। लेकिन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो ये मैं तालिब हूँगा, सिर्फ क्या है खुदा मैं दिल से तेरा तालिब हूँगा। लेकिन इंग्लिश के अंदर अर्ली विल आई सीक दाई, तो इसका मतलब ये है कि सुबह सवेरे मैं क्या करूँगा, तेरी तलाश करूँगा। सुबह सवेरे मैं क्या करूँगा, तेरी तलाश करूँगा या तेरा तालिब हूँगा। और वो कैसे होगा, दिल से। आमीन। चुनांचे जो अर्नेस्टली या फर्वेंटली क्या करते हैं, वो खुदावन के तालिब होते हैं या खुदावन की तलाश करते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ जब वो दूसरों से मुख्तलिफ नज़र आती हैं। अजीज़ बहनों भाइयों, हमारी ज़िंदगी का महवर जो है वो खुदा है, क्योंकि वो खालिक है, वो मालिक है, वो इसका बनाने वाला है। हम अपने तौर पर जो है कोशिश नहीं कर सकते कि भी किस तरीके के साथ इसको अच्छी बना सकें या अच्छा जो है इसके लिए कर सकें। हम अपनी मेहनत, अपनी कोशिश और अपने सारे ज़राए इस्तेमाल करते हैं कि हम जो है वो एक बामकसद और ज़बरदस्त ज़िंदगी बसर कर सकें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। इसकी रीज़न क्या है या इसकी वजह क्या है? इसकी रीज़न और वजह यह है क्योंकि हमारा महवर हमारा खुदा है। ज़रूर है कि अपनी ज़िंदगी को जो है ज़बरदस्त बनाने के लिए और जो है वो जो है एक बड़ी बामकसद बनाने के लिए हमें खुदा का तालिब होना होगा, हमें खुदा की तलाश करना होगी। और जब तक हम उसे ढूंढेंगे नहीं या हम अगर उसकी तलाश नहीं करेंगे तो हम जिंदगी के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी जो है अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकते हैं। हम कभी भी उस जगह के ऊपर नहीं पहुंच सकते हैं जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। दुनिया के अंदर बहुत से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं कि ज़िंदगी को खूबसूरत और जो है वो ज़बरदस्त बनाया जा सके और कामयाब किया जा सके, लेकिन वो सारे तरीके जो है हर शख्स की अपनी ज़ात तक महदूद हैं। तरीके ज़ाबते जो है ये कोई जो है वो इंसान को जो है वो उसकी जो है मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते, इसलिए क्योंकि जो है तरीके ज़वाबत जो है ये जो है उन इंसान के अपने घड़े हुए हैं। दरअसल खुदा है जिसने जो है वो बनाया है। आप ये देखिए कि कोई भी चीज़ जब आज़ाद होती है या बनती है, उसका एक जो किताबचा जो है वो साथ में दिया जाता है। बनाने वाला क्या करता है, उसको इस्तेमाल के लिए उसे जो है उसका मैनुअल देता है ताकि उसे पढ़ा जा सके। आमीन। इसलिए ज़रूर है कि हम झांकिए कि हम किस तरीके के साथ जो है अपनी ज़िंदगी को जो है वो बना सकते हैं। याद रखिए कि खुदावन को जाने बगैर हम अपनी ज़िंदगी को जो है वो अच्छी जगह के ऊपर नहीं लेकर जा सकते हैं। आमीन। और इसलिए ज़रूर है कि हम उसकी तलाश या अपने पूरे दिल के साथ करने वाले हों। यह दाऊद ने इस बात को अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़े गहरे अंदाज के साथ जो है वो सीखा है, उसने ये जाना है। अगर आप जो है उसकी जो है ज़िंदगी को टटोलें या आप ज़बूरों के अंदर पढ़ें तो वो आपको बयान करेगा कि मैं किस तरीके के साथ जो है खुदा का तालिब हूँ। अगर आप ज़बूर 5 और उसकी 8वीं आयत में पढ़ें तो वो बयान करता है, कहता है उसकी 3री आयत, ऐ खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूंगा। क्या कहता है? ऐ खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूंगा।
चुनाचे आप ये देखिए कि जब वो सुबह की बात करता है तो वो अर्ली इन द मॉर्निंग की बात करता है, यानी वो फटने से पहले ही जो है वो अपनी दुआ का आगाज करता है। और फिर वो क्या कहता है, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा। चुनाचे जो है वो अपने दिन का आगाज जो है वो क्या है, या यूं कह लीजिए कि जो सबसे पहली चीज जो उसके जो है दिन का जो है हिस्सा बनती है, और वो क्या है, सीकिंग ऑफ द लॉर्ड। आमीन, खुदावन की तलाश। आमीन। क्या है उसकी जिंदगी का यह पहले दिन की जो पहली चीज है, यह फर्स्ट थिंग इन द डे, फर्स्ट थिंग इन द डे, यानी पहले दिन में, दिन के आगाज में जो पहली चीज उसकी है वो क्या है कि मुझे खुदावन की तलाश करनी है। उसने इस बात को समझ लिया और ये जान लिया कि मेरी जिंदगी या मेरा दिन जो है वो किस तरीके से अच्छा गुजर सकता है, या मैं किस तरीके से इस दिन में कामयाब हो सकता हूं, या इस दिन को मैं कैसे फतह कर सकता हूं। इसलिए आप अय्यूब की किताब में पढ़ें, क्या तूने सुबह को हुक्मरानी की है। याद रखिए, जो सुबह को जो है खुदावंद की तलाश करते हैं वो सारे दिन में हुक्मरान कहलाते हैं। हालेलुया। और अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर इस बात में फिरवंट हो जाएंगे, अगर इस बात में आप अननेसली जो है उसे तलाश करेंगे, यानी पूरे दिल के साथ, पूरी ताकत के साथ, बड़े मुश्ताक होकर जो है, बड़े इश्तियाक के साथ, या बड़े जोश के साथ, जिसे हम ये जोश जो है जरा आसानी के साथ आपको समझ आ सकता है कि जब आप बड़े जोश के साथ जो है उसकी तलाश करेंगे तो आप यकीनन जो है आप सुबह को क्या करेंगे, वो हुक्मरानी करने वाले हो सकेंगे। आमीन। सिर्फ खुदावंद जो है ऐसे लोगों को ये प्रिविलेज दे सकता है, ऐसे लोगों को शर्फ दे सकता है। इसलिए मैं आज से आपको ये उभारना चाहूंगा कि आप जो है अर्ली के तौर पर जो है उठना सीखते। मेरी जिंदगी के अंदर जो है आमतौर पर मैं जो है नाइट प्रेयर को जो है वो ज्यादा प्रेफरेंस देता रहा हूं, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर गौर करना शुरू किया तो जो है पिछले 1-1.5 हफ्ते से जो है ये चीजें मेरे अंदर उठना शुरू हुई कि अर्ली इन द मॉर्निंग जो है ये इन चीजों के ऊपर हमें आना होगा। ये भी एक सीक्रेट है जो हमें जो है सीखना होगा। जब आप इस सीक्रेट को सीख जाएंगे तो याद रखिए कि दिन आपके कंट्रोल में होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी आप जो है वो प्लान करना चाहते हैं, कुछ भी आप मकासद ठहराना चाहते हैं, कुछ भी और कुछ भी, हालेलुया, उससे पहले क्या करने की जरूरत है? इससे पहले कि आप दिन का जो है टाइम टेबल बनाना शुरू करें, इससे पहले कि आप जो है किसी दिन के अंदर कोई मकसद ठहराएं, मंसूबा बनाएं, और जो है क्या करने की जरूरत है? आई विल सीक द लॉर्ड। हालेलुया। सबसे पहले मुझे क्या करने की जरूरत है? मुझे उसकी तलाश करने की जरूरत है, मुझे उसका तालिब होने की जरूरत है। लेकिन दुनिया का जो तरीकाकार है वो थोड़ा सा बदलता जा रहा है, और वो बदलाव क्या आ रहा है? बदलाव ये आ रहा है कि जो है देर को जो है क्या करना है, देर को सोना और जो है और देर से उठना जो है ये आम रूटीन जो है वो बन चुकी है। और जो है अर्ली इन द मॉर्निंग उठने की जो आदत है वो हमारी जिंदगियों से दूर हो चुकी है, और कहा जाता है कि काम ज़्यादा किया जाता है और इसलिए हमसे उठा नहीं जाता है, या हमने ऐसा शेड्यूल जो है अपनी ज़िंदगी का बना लिया है कि हम जो है सुबह सवेरे जो है उठ नहीं पाते, और इसलिए ज़बूर 63 जो है ये काम गाना शुरू हो चुका है। ये काम क्यों गाया जाता है? क्योंकि इसको गाने से तकलीफ होती है, इसको गाने से जो है क्या होता है, जो है वो थोड़ी सी इरिटेशन होती है। मैं किस तरह गाऊं, ठीक है, मैं जो है 11-12 बजे जो है इसको कैसे गाऊं, तड़के मैं तेनू ढूंढा, ये मुझे आवाज देता है ये ज़बूर। ये जो है मैंने पहले बताया कि 3री सदी से ये मॉर्निंग सॉन्ग जो है चर्च के अंदर ये कहलाता था। चुनाचे ये क्यों जो है ये काम
से कम और कम से कम होता चला जा रहा है। इसलिए कि कलीसियाओं के अंदर या ईमानदारों के अंदर ये बात, इस बात की कमी पाई जाती है कि वो अर्ली जो है वो क्या कर सके, वो जाकर खुदा उनकी प्रस्तुति और सताइश और हमद कर सके। आमीन। अजीज बहनों भाइयों, इससे पहले कि जहन मुंतशिर हो जाए और दिमाग के अंदर और चीजों की तलाश जब वो स्टार्ट हो जाए, उससे पहले कि ये सब कुछ वकूअ में आए, जरूर है कि सबसे पहले खुदा की तलाश स्टार्ट की जाए। आमीन। जहन और ख्यालात जब हम जो है अपने जो है उठ जाते हैं तो ये स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। इससे पहले कि ये मुंतशिर हो जाए, इससे पहले कि जो है हम जो है जब इस दुनिया के अंदर जो है दाखिल हों और जो है कदम बाहर रखें या जो है किसी से मुलाकात करें, जो है सबसे पहली मुलाकात किससे होनी चाहिए? बोलिए, अपने खुदावंद से, अपने मसीहा से। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जो है जब हम दुनिया के साथ मुलाकात भी करते हैं या भाइयों से, बहनों से, अजीजों से या किसी और से जब वो मुलाकात करते हैं तो हम जो है वो और तरह की जो है इंटरेक्शंस हमारी जिंदगियों के अंदर आना शुरू हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि दूसरी मुलाकात हो, एक पहली मुलाकात कीजिए। हालेलुया। उस पहली मुलाकात में जो है हम जो है अपने खुदा को याद रखिए। वो पहली मुलाकात किसके साथ होनी चाहिए? बोलिए, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा जो है हमारी तलाश का पहला जो है वो जुज होना चाहिए। हमारी जो है हमारे तलब का जो वो पहला जुज कौन सा है? हमारा तालिब होने का जो पहला जुज क्या है? वो क्या है? बोलिए, खुदा। आमीन। सबसे पहले क्या है? बोलिए, खुदा। बच्चों, खुदा सबसे उठने के बाद सबसे पहला काम क्या है? बोलिए, खुदा। कौन? पहली मुलाकात किससे होगी? दिन की पहली मुलाकात किससे हो? आमीन। दिन की पहली मुलाकात किससे होगी? दिन जो है सबसे प्लानिंग की इससे पहले कि प्लान किया जाए, सबसे पहली प्लानिंग क्या है? खुदा से मुलाकात है। सबसे पहला मकसद क्या है? खुदावंद की तलाश। इससे पहले कि, आप गौर से सुनिए, इससे पहले कि जो है कोई जवानी में कदम रखे, इससे पहले कि जो है हम जो है अपने महीने का आगाज करें, अपने दिन का आगाज करें, अपने हफ्ते का आगाज हो, अपने महीने का, अपने साल का, उसमें क्या करना चाहिए? पहले ही तलाश किसकी हो? खुदावंद की तलाश होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये देखिए कि जो है इसलिए जो है आप जो है अमसाल की किताब जब पढ़ते हैं तो सुलेमान ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है। और वो अमसाल दूसरा बाब उसकी 4 आयत में ये कहता है, वो ये कहता है, और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसी पुशीदा खजानों की। आमीन। जैसे चांदी को ढूंढा जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो है जो मर्चेंट तिजारत ताजर लोग हैं, वो क्या करते हैं? चांदी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। वो क्या करते हैं? पुशीदा खजानों की तलाश में जो है लोग निकल पड़ते हैं ताकि क्या किया जाए? खजाने इकट्ठे किया जा सके। वो दाऊद कहता है, सुलेमान ये कहता है कि तू उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसी पुशीदा खजानों की, तो तू खुदा उनके खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा। आमीन। अजीज बहनों भाइयों, जब तक आप जो है इस तौर पर तलाश नहीं करते कि मैं जो रोजाना या रुपये पैसे को कमाने के लिए निकलता हूं, एक बड़ी सोच, एक बड़ा ख्याल जब बनाकर निकलता हूं, मैं किस तौर पर एफिशिएंट हो सकता हूं, मैं किस कदर जो है जबरदस्त बन सकता हूं, और मेरा दिन कैसे जो है वो जबरदस्त हो सकता है, मुबारक हो सकता है, फतहमंद हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है। ये उस वक्त हो सकता है अजीज बहनों भाइयों जब पहली तलाश कौन सी होगी? खुदा की। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप जो है इस तौर पर तलाश करेंगे तो यकीन जानिए आप अपनी जिंदगी के अंदर अपनी बरकतों का अंदाज जो है वो फर्क जो है देखेंगे।
آج سے یہ اپنے اندر یہ ٹھانیے کہ ہم کس طریقے کے ساتھ یا اس کے طالب ہو سکتے ہیں اور کس طریقے کے ساتھ جو ہے اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکتے ہیں. آمین. بائبل مقدس میں آپ کو ایک جگہ کے اوپر نظر آئے گا. ہیکل کے اندر لوگ جو ہیں وہ صبح سویرے، ٹھیک ہے، کتنے بجے؟ صبح سویرے کیا کرتے تھے؟ آتے تھے. کتنے بجے؟ صبح سویرے. لوکا کی انجیل 21واں باب اس کی 38 آیت جو ہے وہ نکالیے ذرا. لوکا کی انجیل اس کا 21واں باب اس کی 38 آیت. کوئی ذرا پڑھے ذرا. آخری آیت ہے. اور صبح سویرے سب لوگ اس کی باتیں سننے کو ہیکل میں اس کے پاس آیا کرتے تھے. آمین. کیا کرتے تھے بولیے؟ صبح سویرے. صبح کو یا صبح سویرے ایسے بولیے. کتنے بجے؟ صبح سویرے. کتنے بجے؟ صبح سویرے. ارلی ان دا مارننگ. نوٹ دا مارننگ بلکہ کب؟ صبح سویرے. ارلی ان دا مارننگ. وہ کیا کرتے تھے؟ یسوع کی باتیں سننے کے لیے ہیکل میں آیا کرتے تھے، اس کے پاس آیا کرتے تھے کہ ہمیں خدا کی بابت جو ہے وہ باتیں مل سکیں، ہم خداوند کو جان سکیں. باپ کی باتیں ہمیں وہ کرتا ہے ہم اس کی سن سکیں. آمین. ارلی ان دا مارننگ کس کے پاس وہ آتے تھے جاتے تھے؟ بولیے یسوع کے پاس. چنانچہ آپ کو کس کے پاس آنے کی ضرورت ہے؟ صبح سویرے یسوع مسیح کے پاس. ہاللیلویا. اور وہ آپ سے باتیں کرے گا، وہ آپ سے کلام کرے گا. اور یہی داؤد کہتا ہے کہ میں صبح سویرے کیا کروں گا؟ میں جو ہے اس کا طالب ہوں گا، میں اسے ڈھونڈوں گا. آمین. میں اس سے دعا کروں گا. صرف صبح سویرے دعا کرنا ہی نہیں بلکہ اسے ڈھونڈنا ہے. آمین. ہاللیلویا. یہ ہے فرینٹلی، جوش کے ساتھ اسے ڈھونڈیے. آمین. اس کا جو ہے جو ارنسلی بھی اس کا مطلب آیا ہے، ارلی ان دا مارننگ بھی اس کا بیسیکلی مطلب ہے. اور پھر جو ہے جوش کے ساتھ اسے ڈھونڈیے، جو ہے اسے بڑے اشتیاق کے ساتھ اسے ڈھونڈیے، یعنی اشتیاق کے ساتھ اس کا طالب ہوں. آمین. یہ صبح سویرے ہو سکتا ہے، یہ دوپہر کو ہو سکتا ہے، یہ رات کو ہو سکتا ہے، لیکن ایمفسائز جو ہے ارلی ان دا مارننگ ہے. آمین. یسوع کے پاس جو ہے لوگ آتے تھے، اس کے پاس صبح سویرے جو ہے اس کے پاس آ کر جو ہے اس کی باتیں سنتے تھے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ان سے کیا کہتا ہے. عزیز بہنوں بھائیو، آپ اپنے دن کا شیڈول کیسے کریں گے؟ آج سے آج اپنے آپ کو کیسا اپنا شیڈول کیسے بنائیں گے اور آپ کو کس طرح کا شیڈول بنانا چاہیے؟ آمین. پریز دی لارڈ. کتنے بجے؟ لیکن میں تو 1-2 بجے سوتا ہوں یا 12 بجے سوتا ہوں. میں کس طرح ارلی ان دا مارننگ اٹھوں گا؟ ہمیں اب سے ڈسپلن کے اندر آنا ہوگا. اور ہمیں جو ہے داؤد کی زندگی بڑی عجیب طرح کی تھی. وہ کہتا ہے میں رات کے ہر پہر سے پہلے اٹھ کر. آمین. اور وہ کیا کرے؟ رات کے ہر پہر سے پہلے اٹھ کر کیا کرتا تھا؟ میں تیرے کلام پر دھیان کروں گا. آمین. میں تیرے کلام کے اوپر کیا کروں گا؟ دھیان کروں گا. آمین. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ تو رات کے ہر پہر سے پہلے اٹھ جاتا ہے. 6 بجے جو ہے ان کا پہر سٹارٹ ہوتا ہے. 6 سے 9. ٹھیک ہے.
اور 9 سے 12 یعنی 12 بجے سے پہلے اٹھتا، پھر 12 بجے سے 3 بجے، 3 بجے سے پہلے اٹھتا، پھر 3 سے 6 بجے، 6 بجے سے پہلے اٹھتا، چنانچہ وہ ہر پہر سے پہلے اٹھ جاتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی نیند جو ہے وہ کس طرح کی تھی، اس نے اپنی زندگی کا شیڈول کیا بنایا تھا، مجھے جو ہے ارنسٹلی جو ہے خدا کی تلاش کرنی ہے، مجھے فروینٹلی جو ہے کیا کرنی ہے، اس کی تلاش کرنی ہے، مجھے جو ہے جوش کے ساتھ، مجھے اشتیاق کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کی تلاش کرنی ہے، مجھے اس کا طالب ہونا ہے، دن ہو یا رات ہو، مجھے اپنے خدا کا طالب ہونا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے وہ زبور 119 اور اس کی آیت یا 45 کے اندر وہ یہ کہتا ہے، ذرا پڑھیے اس آیت کو۔ زبور 119 اس کی 45ویں آیت۔ اور میں آزادی سے چلوں گا کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں۔ آمین۔ میں اس کی تیرے قوانین کی تلاش میں رہا ہوں۔ جب طالب کی بات کی جاتی ہے تو یہ سیکنگ کی بات کی جاتی ہے جو ہے، تو میں جو ہے اس کی تلاش میں، اس کی سرچنگ کے اندر رہا ہوں۔ لیکن آج کل جو ہے سرچنگ جو ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے، ہر روز جو ہے رنگ برنگی سرچیں ہوتی ہیں، کمپیوٹر کے اوپر جو ہے، موبائل کے اوپر جو ہے، بچوں کے ہاں، بڑوں کے ہاں جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے، سرچ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر کیا کرے جی، میں سرچ کر رہا ہوں، میں سرچ کر رہا ہوں، میں سرچ کر رہا ہوں۔ لیکن بائبل یہ فرماتی ہے، وہ کیا کر جو ہے، داؤد کیا کہتا ہے، ارلی ول آئی سیک یو۔ ہاللیلویہ۔ میں صبح سویرے تیری تلاش کروں گا، جو رات کے ہر پہر سے پہلے کیا کروں گا، میں جو اٹھ جاؤں گا اور کیا کروں گا، تیرے قوانین کا، تیرے کلام کا میں طالب رہوں گا، میں اس کی تلاش کروں گا، میں دوربین لگاؤں گا تاکہ میں اس کی تلاش کر سکوں۔ میں ابھی اپنا ٹیبلٹ کھولوں گا، میں ابھی اپنا موبائل کھولوں گا اور جو ہے وہ سب چیزیں میرے سامنے کھل جائیں گی۔ ہاللیلویہ۔ میرا کنیکشن میرے خداوند کے ساتھ وہ ٹھیک ہے۔ پریز دی لارڈ۔ عزیز بہنوں بھائیوں، اب غور سے سنیے، میں آزادی سے چلوں گا کیونکہ میں تیرے قوانین کا کیا ہوں، بولیے، طالب رہا ہوں۔ چنانچہ آپ کی آزادی اس وقت مسخ ہو جاتی ہے، اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب جو ہے آپ خداوند کے قوانین کی تلاش نہیں کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہے آپ پھندے کا شکار ہو جاتے ہیں، اس وقت جو ہے آپ جو ہے اس کے شکنجے کے اندر آ جاتے ہیں کہ جو ہے آپ اگر جو ہے اپنی دنیا کی تلاش میں ہوں گے اور جو ہے آپ کی آزادی جو ہے آپ کو جو ہے وہ پھندا معلوم ہوگی، میں نکل نہیں رہا، ایسے جیسے آپ جو گڑھے کے اندر پھنس چکے ہیں، ایسے کہ جیسے آپ جو گر چکے ہیں، آپ نکلنا چاہتے ہیں، نکل نہیں پا رہے ہیں، ایسا کس کر جو ہے اس نے باندھ دیا ہے، آزاد نہیں ہو رہے ہیں، بیڑیاں پہنا دی ہیں، جہاں گلے کے اندر ایسا جو ہے اسے کھینچ دیا کہ گلا آنکھیں باہر نکل گئی ہیں، ہم قید ہو چکے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم جو ہے ہماری سرچز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ہم جو ہے اور طرح کی سرچ کر رہے ہیں، ہم دنیا کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں، ہم پانیوں کی تلاش میں ہیں، ہم روٹی کی تلاش میں ہیں، ہم کاروبار کی تلاش میں ہیں، ہم اچھے بننے کی تلاش میں ہیں، ہم جو اونچا اڑنے کی تلاش میں ہیں۔ لیکن داؤد سے پوچھئے، تو کس طرح سے آزادی میں زندگی بسر کر رہا ہے، تو کیسے آزاد ہے؟ میں قوانین کا طالب ہوں۔ ہاللیلویہ۔ میں جو ہے اس کے کلام کو تلاش کرتا ہوں، اور اس کی جو ہے اس کا ثبوت آپ کو پہلا سیموئیل اور اس کے 23ویں باب اس کی 14ویں آیت میں ملے گا۔ ذرا پڑھیے اس آیت کو، پہلا سیموئیل اس کا 23واں باب اس کی 14ویں آیت۔ ہاللیلویہ۔ اور داؤد نے بیابان کے قلعوں میں سکونت کی اور دشت زیف کے کوہستانی ملک میں رہا، اور ساؤل ہر روز اس کی تلاش میں رہا
पर खुदा ने उसको उसके हाथ में हवाला ना किया। आमीन, हालेलुया। वो हर रोज उसकी तलाश में निकलता था, हर रोज साउल उसकी तलाश में निकलता था। बाइबल यही फरमाती है कि वो साउल हर रोज उसकी तलाश में रहा। एवरी डे वो क्या करता था, वो दाऊद की तलाश में निकलता था। वो अपने फौजियों को भेजता, सिपाहियों को भेजता, वो खुद उसकी तलाश में जब वो भागा भागा फिरता, कभी मैदानों में, कभी पहाड़ों में, जहां कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर साउल ने दाऊद को तलाश ना किया। वो उसके सामने भी होता, वो उसको नजर नहीं आता था। क्यों? दाऊद उसके हाथ में क्यों नहीं लगता था? क्योंकि खुदा नहीं उसको डिस्टर्ब करना चाहता था दाऊद को, क्योंकि दाऊद तो उसकी तलाश में निकला हुआ था। हालेलुया। दाऊद किसकी तलाश में निकला हुआ है? बोलिए, वो अपने खुदा की तलाश में निकला हुआ है। इसलिए जब साउल उसकी तलाश में निकला हुआ है, चनाचे जब खुदा देखता है कि साउल इसकी तलाश में निकला है लेकिन दाऊद मेरी तलाश में निकला हुआ है, चनाचे साउल की राहों को वो क्या करता था? वो बिगाड़ देता था। हालेलुया। मैं आजादी से चलूंगा क्योंकि मैं तेरे कवानीन का तालिब हूं। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, हम क्यों पकड़े जाते हैं? हमें दुश्मन क्यों दबोच लेता है? हर रोज दबोचे जाते हैं, हर रोज एक नई टेंशन, एक नई डिप्रेशन, एक नया अजाब हमारी जिंदगियों के अंदर नाज़िल आता होता है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि हमारी तलाश कुछ और चल रही है। हम अपनी ख्वाहिशों के तालिब हैं, हम अपनी ख्वाहिशों को ढूंढ रहे हैं। ये कैसे मिल सकता है? ये किस तरीके के साथ मैं इसे हासिल कर सकता हूँ? ये कैसे मैं पा सकता हूँ? जायज़ तरीके के साथ या ना जायज़ तरीके के साथ? क्या कहते हैं, हम बड़ी मेहनत करते हैं, हम में कोई मकर नहीं है, हम बड़े तरीके के साथ चल रहे हैं, लेकिन तो भी वो मूव नहीं है। लेकिन ये हम अपने कोशिशों से, अपने तरीकों से जरा अपना ध्यान बटाइए, अपने ध्यान को डाइवर्ट करिए और अपने आप को खुदा की तरफ मोड़िए। सीकिंग, हालेलुया। ढूंढो, यीशु ने क्या कहा? ढूंढो तो पाओगे। हम ढूंढते ही नहीं, ये ढूंढो क्या? यीशु मसीह ने कहा तुम अपने बच्चे को रोटी मांगते हो पत्थर नहीं देते, मछली मांगे तो अंडा देते हो। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। जब आप ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको भी कुछ अच्छा मिलना शुरू होगा और वो आसमानी बाप अच्छी से अच्छी चीजें आपको देगा। आमीन, हालेलुया। उसे क्या कहा? बोलिए, ढूंढो। एक दूसरे को कहिए, ढूंढो। प्रेज द लॉर्ड। से ढूंढो, सर्च, सीख, हालेलुया, सीख। आमीन। जब आप ढूंढना शुरू करेंगे, जब आप तलाश करना शुरू करेंगे, तो यकीन जानिए आपकी जिंदगी के अंदर दुश्मन की आंखों के सामने आप होंगे, लेकिन ऐसा नजर आएंगे कि आप नजर ही नहीं आते। आमीन। वो ढूंढता रह जाएगा। इधर ही तो था, इधर ही उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, इधर ही उसके पांव के कदम नजर आ रहे हैं। वो गया कहां पर है? वो अपना सारा खुर लगा कर ढूंढता रहे, अपनी सारी बदरूहें, अपनी सारी पावर्स वो लगा दे तलाश करने के ऊपर, लेकिन उसका बंदा जो अपने खुदावन की तलाश में निकला हुआ है, कभी भी उसको वो ढूंढ नहीं सकता। आमीन। क्यों? क्योंकि जो खुदावन की तलाश में निकले हैं, तो खुदावन की कुदरत उनको सहायता करती है, खुदावन का हाथ उनकी सहायता और मदद करता है। आमीन। क्या किए रे? फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बोलिए। तलाश कीजिए। सबसे पहला हमारा काम क्या है? बोलिए। सबसे पहला मकसद क्या है? सबसे पहला मंसूबा क्या है? इससे पहले कि हमारा जहन बदल जाए, इससे पहले कि सोचें मुंतशर होना शुरू हो जाए, इससे दिन निकलते ही हमारी सोचें और हमारे ख्याल हमारा साथ ना देना शुरू करें, उससे पहले एक बड़ा काम करना शुरू करें, और वो क्या है? सीक द लॉर्ड अर्नेस्टली, fervently। आमीन।
जो है ये ऐसे तरीके ऐसे नहीं जैसे जो है हम रूटीन के साथ कर रहे हैं, इसे जो है fervently लेना होगा, जोश के साथ। हालेलुया। अपनी तलाश को जो है जरा हीट दीजिए, आमीन। जरा अपनी ख्वाहिश को जरा जो है वो परवान चढ़ाइए, अपनी जो है मसल को जो है वो जरा सख्त कीजिए, इसको एक्सरसाइज के अंदर लेकर आइए, आमीन। और यही कमी जो है आज यह कलीसियों मकदसों के अंदर जो है बड़े लोग तलाश के अंदर खुदा की निकले हैं, लेकिन तो भी बिदअत जो है वो कसरत से बढ़ रही हैं। यह एक ऐसी तलाश है यह है कि यह जिंदगियों के अंदर जो है उनके परसेप्शंस जो है वो फर्क हो रहे हैं। अगर कोई शख्स खुदा की तलाश में निकला है तो वो खुदा उसके जहन को वो खोल लेता है। खुदा यीशु मसीह ने खुद जो है बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उनके जहन को खोला ताकि वो किताब मुकद्दस को समझे, क्योंकि उन्होंने दिल लगा लिया कि हम जो है तुझसे सीखना चाहते हैं, तुझसे समझना चाहते हैं, तुझे पाना चाहते हैं, तुझे देखना चाहते हैं, तेरे दीदार के तालिब होना चाहते हैं। मैं सुबह सवेरे ही तेरे दीदार का तालिब होऊंगा, आमीन। मैं तेरे चेहरे की तलाश में, आई विल सीक योर फेस, मैं तेरे जो है उसके तेरे दीदार का तालिब होऊंगा। हम किस रोजाना किस चीज के दीदार के तालिब होते हैं, और हमने जो है दुनिया के अंदर जो है बड़ा सीखना सिखाना जो चला हुआ, एक से बढ़कर एक जो है नई नई बातें सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी खुदा जो है उनसे दूर है, फिर भी खुदा की मायने उनकी जिंदगी से दूर है। ये कैसे हो सकता है कि किसी ने खुदा की तरफ तलाश में दिल लगाया हो और वो खुदा को पा ना सके, जिसने ढूंढा और वो उसने पाया ना हो। ये बिब्लिकल ट्रुथ है, ये क्राइस्ट ट्रुथ है, और वो ये है कि ढूंढो तो पाओगे। ये ट्रुथ खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो दी है कि ढूंढो तो पाओगे। हम क्या ढूंढ रहे हैं और क्या हमें मिल रहा है, हम किस जो है किन किन राहों पर चलकर ढूंढ रहे हैं, ये जो है हमें जानना होगा। आमीन, आमीन। जरा ढूंढिए तो क्या करेंगे, बोलिए, पा लेंगे। दुश्मन ढूंढता रहेगा तो फिर क्या होगा, वो क्या करेगा, वो ढूंढता ही रह जाएगा। लेकिन अगर आप खुदावंद के तालिब होंगे और खुदावंद की तलाश करेंगे तो फिर क्या होगा, आज़ादी के साथ चलेंगे। वो ढूंढते ढूंढते रोज रोज ढूंढेगा, वो रोज निकलेगा कि मैं क्या करूं, जो है उसको पालूं, उसे मैं खींच लूं, मैं उसे काबू में कर लूं, लेकिन वो क्या करेगा, वो नाकाम होगा। अगर आप जो है इब्लीस को, अपने दुश्मनों को जो है नाकाम करना चाहते हैं तो फिर क्या करना शुरू करें, खुदा उनकी तलाश में लग जाइए, ढूंढना शुरू करें, सर्च, सीख, तलाश कीजिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यशायाह 26 वर्स 9 के अंदर वो एक बात बड़ी खूबसूरत करता है, रात को मेरी जान तेरी मुश्ताक है। रात को मेरी जान क्या है, हाँ, मेरी रूह तेरी जुस्तजू में कोशा रहेगी। मेरी रूह क्या करेगी, तेरी जुस्तजू में, तेरी तलाश में क्या रहेगी, एवरी डे। जब आप इस इंग्लिश में करेंगे कि एवरी डे माय स्पिरिट क्या करेगी, तेरी तलाश में रहेगी, तेरी जुस्तजू में रहेगी। क्या कहता है, रात को मेरी जान तेरी मुश्ताक है, हाँ मेरी रूह तेरी जुस्तजू में कोशा रहेगी, एवरी डे। आमीन। मेरी रूह हर रोज हर वक्त क्या करेगी, बोलिए, तेरी तलाश मेरे कोशा रहेगी, क्योंकि जब तेरी अदालत जमीन पर जारी है दुनिया के बाशिंदे सदाकत सीखते हैं। आमीन। अजीज भाइयों, एवरी डे, हर रोज जो है हमारी तलाश का जो है वो सब्जेक्ट क्या है, जो है उसका आगाज, हमारी जो है तलाश का आगाज क्या है। हम बहुत सारी चीजें ढूंढने के लिए जमीन के ऊपर निकले हुए हैं, हम बहुत सारी चीजों को पाने के लिए जो है कोशा हैं, लेकिन यशायाह कहता है मेरी रूह तेरी जुस्तजू में कोशा रहेगी। आमीन। मेरी रूह किसके लिए जो है
किसकी जस्तजू कर रही है, किसकी तलाश में कोशा है, हर वक्त जिसके एक ही बात सवार रहती है, मैं इसको पालूं, मैं उसको हासिल कर लूं। यह बात दफा जो है हम बहुत कुछ की को पाने के लिए जो है काश ये ख्वाहिश हमारे अंदर पाई जाती, काश वो मुझे मिल जाए या ये मैं पालूं, काश मैं उस जगह के पर पहुंच जाता या मैं पहुंच जाऊं। अजीज बहनों भाइयों, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो बनाने वाला है उसकी तलाश कीजिए, उसको पा लीजिए, सब चीजें जो है हमारी जो है वो अपने आप जब वो सीधी होना शुरू हो जाएंगी। हमारी चीजें क्यों बिगड़ी हुई हैं, हमारी चीजें हमसे क्यों दूर पड़ी हुई हैं, हम उस तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? लेकिन इसलिए कि हमारी तलाश के अंदर फर्क है। हम उस तरीके के साथ जो कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम ये जो है जरूर जो है अपने पास्टर को कह सकते हैं, हाँ मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं दुआ करता हूं, मैं चर्च जाता हूं, कोशिश करता रहता हूं कि मैं जो है उस जो है कांटेक्ट के अंदर रहूं। अजीज बहनों भाइयों, इससे नहीं होगा। हीट दीजिए, आमीन। क्या कीजिए? हीट दीजिए अपनी तलाश को। आमेन। इसे जोश दीजिए, आमेन। इसे आग दीजिए, इसमें ये इश्तियाक लेकर आइए, इसमें मुश्ताकी जो है अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आइए, इसमें बर्निंग ख्वाहिश को जो है डिजायर को लेकर आइए, जलती हुई ख्वाहिश को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आइए। मुझे उसे ढूंढना है, मुझे उसे पाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को एक बात कही, जब वो यह तवारीख, पहली तवारीख उसका 29 बाप, उसकी 22वां बाप, उसकी 19वीं आयत के अंदर जो है इसका जिक्र आपको मिलता है। और उसने ये कहा, जरा गौर से सुनिए उसने क्या कहा। सो अब तू अपने दिल को, तू अपने दिल को और अपनी जान को, अपने दिल को और अपनी जान को खुदा अपने खुदा की तलाश में लगा। कहा अपने दिल को और अपनी जान को खुदा अपने खुदा की तलाश में लगाओ और उठो। आमीन। पहला काम क्या है? अपने दिल और अपनी जान को क्या करो? खुदावन अपने खुदा की तलाश में लगाओ और फिर और उठो। आमीन। क्या करो? उठो। पहले क्या करो? तलाश में लगाओ, फिर क्या करो? पहले साहब उठो। प्रेज द लॉर्ड। क्या करो? उठो। हम तलाश में लगाए हुए हैं खुदावन दिल, लेकिन उठने को, घुटने जो है वो क्या है, वो हमारे जो है वो तैयार नहीं है। जिसने खुदावन के साथ दिल लगाया, जिसने खुदावन की तलाश में अपनी दिल, अपनी जान को लगाया है, वो क्या करेगा? वो उठेगा। आमीन। ये कहना गलत है, ये टोटली रॉन्ग है कि मैं दिल लगाया हुआ है खुदा के साथ, मैं खुदा के साथ दिल लगाया हुआ हूं लेकिन उठा जाता नहीं है। ठीक है, ढीले हैं, ठीक है, टखने और घुटने और हाथ पांव यह ढीले हैं। बाइबल मुकद्दस में यह दाऊद ने अपने बेटे को जो ना तजर्बाकार ही था उस वक्त ये बात कही थी, दिल लगा। आमीन। दिल लगा खुदावन की तलाश में जो है, फिर क्या कर? फिर उठो और खुदा का मकदस बनाओ, ताकि तुम खुदावन के अहद के संदूक को और खुदा के पाक बर्तनों को उस घर में जो खुदावन के नाम का बनेगा ले आओ। ये उस वक्त तक जो है प्रेजेंस ऑफ गॉड जो है खुदा का जो है खुदा की हुजूरी जो है घरों के अंदर नहीं आएगी जब तक आप खुदावन की तलाश नहीं करते हैं, और जब तक आप उठेंगे नहीं और तामील नहीं करेंगे और जो है खुदा के अहद के संदूक उसके पाक बर्तनों को जो है इस हैकल के अंदर ले नहीं आते हैं, तब तक ये जो है हम अधूरे रहेंगे। ये है एक मुकम्मल, अजीज बहनों भाइयों, एक मुकम्मल तलाश है। और जब तक कोई शख्स खुदा की तलाश नहीं करता है उस वक्त खुदा का अहद का संदूक और पाक बर्तन जो है वो घरों के अंदर नहीं आ सकते। आमीन।
मेरी बात आप समझे हैं? उस वक्त तक जो है आप प्रेजेंस ऑफ गॉड को जो है उसकी खिदमत को जो है कभी भी नहीं समझ पाएंगे जब तक आप दिल के साथ उसके मुश्ताक नहीं होते हैं, जब आप दिल के साथ उसके तालिब नहीं होते हैं। कह दीजिए उसे, ऐ खुदावन तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूंगा। खुश्क और प्यासी जमीन में जहां पानी नहीं, मेरी जान जो है वो मेरा बदन तेरा मुश्ताक है। आमीन। मुझे पानी की जरूरत है, लेकिन मैं पानी से ज्यादा जो है मेरा बदन तेरा मुश्ताक है, मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। और फिर कि इस तरह मैंने तेरी हशमत के, तेरे घर के, तेरे मकदस में निगाह की है। अजीज भाइयों भाइयों, जब कोई शख्स जहाँ तलाश में रहता है, उसके सामने सब चीजें खुल जाती हैं। मकदस उसके सामने खुल जाता है, उसके सामने जो है खुदा की हजूरी और खुदा का अरफान जो है वो उसके सामने खुल जाता है। और वो कहता है, इस तरह मैंने मकदस में तुझ पर निगाह की ताकि तेरी कुदरत और हशमत को देखूं। उसकी ग्लोरी और उसकी डिग्निटी को वो शख्स देखेगा जो शख्स जो है दिल से जो है उसका तालिब है। आमीन। जो है उस वक्त तक जो है प्रेजेंस ऑफ गॉड, डिग्निटी और ग्लोरी को, खुदा की हशमत, उसकी कुदरत को आप इस जिंदगी के अंदर एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है जब तक वो fervently जो है वो सीकिंग अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आता है। आइए खुदा की तलाश में लगिए, उठो, तलाश करो और उठो और खुदा के मकदस को बनाओ ताकि खुदा के पाक संदूक को और उसके पाक बर्तनों को उस घर में लेकर आओ जो बनेगा। आमीन। ये उस वक्त तक ये चीजें जो है अपनी प्रॉपर जगह के ऊपर जो है नहीं आ सकती हैं जब तक हम जो है अपने पूरे दिल और अपनी पूरी जान के साथ जो है उसकी तलाश नहीं करते हैं। इसलिए जो है खुदा की कुदरत दूर है, खुदा की हशमत दूर है, उसकी प्रेजेंस हमारी जिंदगियों के अंदर फील नहीं होती है। इसके लिए उसी वक्त फील होगी जब दिल और दिमाग और जान जो है क्या करेगा, खुदा की तलाश में लग जाएगा। आमीन। उसको खुदा रहनुमाई करेगा कि जो है ये खुदा की तलाश में जो है और जो कोई उसको उसकी तलाश करता है वो उसे पा लेता है। और ये बात दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को समझाई थी, अगर तू उसे दिल से ढूंढेगा तो वो तुझे क्या करेगा, तुझे मिल जाएगा। आमीन। इसका मतलब है उसने पा लिया था, दाऊद ने उसे पा लिया था, वो तलाश में रहता था। बहुत से ऐसे भाई बहन बच्चे हैं जो है जिन्होंने कभी भी किताब को खोल कर नहीं देखा है, या बहुत दूर है किताब जो है, दूर पड़ी हुई है, बंद पड़ी हुई है। मेरे प्यारे मेरे बहनों भाइयों, जो है किताब खोलिए, ढूंढिए, उसको ढूंढिए, उसकी तलाश में जाइए। जो है अपनी कोठरी में जाकर जो है fervent in prayer, मैंने आपको ये बात बताई है, जाइए इस कोठरी में जाकर उससे दुआ करें ताकि जो है उसकी तलाश जो है हो सके। जब आप उसे पालेंगे, जब उसे आप ढूंढ लेंगे, जब आपको तसल्ली हो जाएगी, आपका दिन, आपकी शाम, आपकी रात जो है खुदावन के फजल से जो है वो अच्छी होना शुरू हो जाएगी। और आप जो है खुदा के अरफान में उसके हाथ के नीचे जो है वो जिंदगी बसर करना शुरू होंगे, आजादी के साथ चलेंगे और आपकी जिंदगी में कोई शिकंजा, कोई फंदा नहीं होगा। आपकी राह हमवार होगी, दुश्मन आपको ढूंढता रहेगा और वो नाकाम हो जाएगा। और जो है खुदा के पर के नीचे आप हमेशा महफूज रहेंगे। हमारी जो है जवानी में जो है हमारी जो है तलाश का जो है महवर कौन है, हमारे बुढ़ापे में जो है तलाश का महवर कौन है, हमारी जिंदगी के हर एक जो है मोड़ के ऊपर जो है हमारे जो है महवर क्या है, हम जो है अपने बुढ़ापे को कैसे बसर करना चाह रहे हैं, हम अपनी जवानी को कैसे जो है बसर करना चाह रहे हैं, हम अपने बचपन को कैसे बसर करना चाह रहे हैं, हम जो है अपने कारोबार को कैसे जो है बसर लेकर चलना चाहते हैं। गोया आप अपनी जिंदगी के सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है किस तरीके के साथ चल सकते हैं। ये उसी वक्त हो सकता है जब हर रोज उसके तालिब होंगे, हर रोज उसकी तलाश करेंगे, हर रोज उसको इस तरह ढूंढेंगे जैसे चांदी को ढूंढा जाता है, जैसे पुशीदा खजानों को ढूंढा जाता है। हम उसको जैसे तलाश करेंगे। मैं चांदी को ढूंढ रहा हूँ, मैं जो है चांदी से भी ज़्यादा यह कीमती चीज़ को ढूंढ रहा हूँ, मैं जो पुशीदा खजानों से भी ज़्यादा एक पुशीदा खजाने को ढूंढ रहा हूँ। कोई आपसे पूछे तू इतनी जो है तू बड़ी तलाश में है, बड़ी सर्च में है, हाँ मुझे जो है चांदी से भी कीमती
कीमती चीज़ ढूंढनी है, मुझे पोशीदा खजाने से भी ज़्यादा खजाना ढूंढना है। मेरा दिल, मेरा जिस्म जो है इसकी मुश्ताक में लगा हुआ है। हमारी सुबह, हमारी शाम क्या होनी चाहिए? इसी की तलाश में रहनी चाहिए। यशायाह ने क्या कहा है? मैं उस आयत को पढ़कर हम दुआ करेंगे। रात को मेरी जान तेरी मुश्ताक है, हाँ मेरी रूह तेरी जुस्तजू में कोशा रहेगी। आमीन। मेरी रूह तेरी जुस्तजू में कोशा रहेगी। Every early in the morning I will search, I will search, I will seek. Amen. आइए आज से ये वादा कीजिए कि अपनी खुदा की तलाश के अंदर हमें एवरी डे, हर रोज़ उसकी तलाश में, यह है सबसे पहला काम। वो क्या है? उसकी तलाश। हर मकसद से पहला मकसद, हर मंसूबे से पहला मंसूबा। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं। मैं आपको 5 मिनट देता हूं, आप थोड़ी देर के लिए अपने दिलों में सोचें। हालेलुया। बड़ी संजीदगी के साथ Hallelujah. God would be first object of our search. Worship you, Jesus. साल के हर शुरू में, हर एक सीजन के शुरू में, हर एक मंथ के शुरू, हर एक हफ्ता का शुरू, हर एक दिन का आगाज सिर्फ और सिर्फ यीशु, मेरा यीशु, यीशु, मेरा यीशु, यीशु। हालेलुया, हालेलुया। Worship you, Jesus Christ. Worship you, Jesus. जलती हुई ख्वाहिश को, बर्निंग ख्वाहिश, बर्निंग डिजायर को अपनी जिंदगी में लेकर आए। मेरी जान तेरी प्यासी है, मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। ऐ खुदा तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूँगा। खुश्क और प्यासी जमीन में जहां पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। हम हर रोज ऐ खुदा तेरी तलाश में लगेंगे। हर रोज लॉर्ड, हर रोज। हम दुनिया की ख्वाहिशों की तलाश में फिरते रहे, हमें माफ कर दे। हमने अपनी तलाश को उल्ट कर दिया, खुदा हमें माफ कर दे। हम सिर्फ और सिर्फ तेरी तलाश करेंगे ताकि सब चीज़ों को हासिल कर सकें। खुदा हालेलुया। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आइए अपने हाथों को उसकी तरफ बुलंद करें, हाथों को बुलंद करें। खुदा आसमानी बाप, मसीह यीशु वो भेद है जो तूने आश्कारा किया है। ऐ खुदावन आसमानी बाप, पाक रूह की कुव्वत और जोर दे हर एक को, कि हर एक के अंदर ये बर्निंग डिजायर हो। ऐ खुदा कि वो तेरी तलाश करे, तुझे ढूंढे। खुदा तेरे तालिब हों। ऐ खुदा तेरे दीदार के तालिब हों। हर अर्ली इन द मॉर्निंग, रात के पहरों में खुदावन तू इनकी, ऐ खुदावन खुदा इनकी जान तेरी मुश्ताक हो और इनकी रूह तेरी जुस्तजू में कोशा रहे। खुदावन हर रोज कोशा रहे। खुदावन
ऐ खुदावन खुदा तू दिलों को तैयार कर, जो खुदावन तेरे साथ कमिटमेंट खुदावन तेरे साथ कर रहे हैं कि हम मैं खुदावन अपने खुदावन के तालिब होंगे, सिर्फ अपने खुदा के तालिब होंगे, ताकि अपनी ज़िंदगी के अंदर तेरी आज़ादी को, बरकत को, तेरे रहम को और तेरे फजल को हासिल कर सके। खुदावन खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तेरा हाथ बुलंद हो इनकी ज़िंदगियों के ऊपर, ऐ खुदावन तेरी कुदरत इनके ऊपर जाहिर हो, और ये जब तलाश करें तेरी डिग्निटी और तेरी ग्लोरी ऐ खुदावन इनके ऊपर आश्कारा हो जाए, और तेरा जलाल इनको घेर ले ऐ खुदावन खुदा, और तेरी ऐ खुदावन खुदा कुव्वत से भर जाए खुदावन, और मामूर ऐ खुदावन हो जाए। तेरा शुक्र हो, तेरी सताइश है खुदावन खुदा। ऐ खुदावन हम दाऊद की तरह कहते हैं, ऐ खुदावन तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूँगा, मैं दिल से तेरा तालिब हूँगा। ऐ खुदावन खुदा हम हमेशा तुझे ढूंढते रहेंगे और तुझे पा लेंगे। खुदावन चांदी से भी ज़्यादा खुदावन तुझे ढूंढेंगे, पुशीदा खजानों से भी ज़्यादा तुझे ढूंढेंगे। खुदावन खुदा तेरा शुक्र हो आज की बरकत के लिए। हमें खुदावन खुदा बड़े जोश के साथ तलाश करने की कुव्वत और जोर दे, हमारे रूह बदन जान के अंदर आग, तेरी आग लग जाए खुदावन, ताकि खुदावन खुदा हम हमेशा तेरे लिए मुस्तैद रहे। तेरी सताइश हो, मैं तेरी कसरत की बरकत तेरे लोगों के लिए मांग लेता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और सब कहें आमीन। तलाश करो और उठो, आमीन।